So, starting here with the new topic, that is meiosis. And this topic we will talk about the meiosis. Let's first see some important points regarding the meiosis. The meiotic cell division first time described by the Van and Benedin in 1883. It's the first point regarding the meiosis. सेकंड पॉइंट जो मैं आपको meiosis के बारे में बोलना चाहता हूँ, that it was proposed by meiosis was proposed by a scientist, two scientists जिनका नाम था, first was Farmer and second was the Muri. These was the two scientists who first proposed the meiosis. Second is meiotic cell division occur in the germ cells of all living organisms. Remember, we have two types of cells, somatic and germ cells. And this meiosis particularly takes place in these germ cells. And what about the somatic cells? Their mitosis takes place. So, is it? Second, during meiosis, the genetic material of a diploid germ cell undergoes two nuclear divisions and result in the formation of four haploid daughter cells. इन meiosis, जब हमने mitosis पढ़ी थी, mitosis में हमें एक सेल से दूसरी सेल बनाते थे. But in case of meiosis, we are going to make four cells. Is it? हम एक सेल से दो नहीं, अब हम कितनी सेलें बनाएंगे? Two nuclear divisions takes place and we are going to have four haploid dot cells in this meiosis. Second, each daughter cell has one half of the number of chromosomes as the parent cell. Remember again here the mitosis. In the mitosis, nothing was happened with the chromosome number. Chromosome number क्या रहते थे वहां पर? सेम रहते थे. अगर यहाँ पर 2n कंडीशन थी तो दूसरी सेल जो बनती थी उसमें भी 2n कंडीशन रहती थी. But in case of meiosis, this chromosome number is reduced from 2n to 1n. Is it? This is another important characteristic of feature of meiosis. There are two successive nuclear divisions in meiosis. How many nuclear divisions takes place here? Two. Important. And on the other hand, one division was found in mitosis. Mitosis में हमें एक ही division होता था, यहाँ पर दो होंगे. Is it? So here meiosis have two states. The first stage of meiosis is that's meiosis first and meiosis second. माइटोसिस में क्या होता था? सीधे माइटोसिस होती थी, ठीक है ना? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. बिफोर दैट वी हैव द इंटरफेज जहां पर डीएनए की सिंथेसिस होती थी. So here we have two stages. The first is meiosis first and meiosis second. What's meiosis first? It's also called a reductional division. Means chromosome number is hollowed from 2n to 1n. In this meiosis first, remember first point. On the other hand, meiosis second is also called equitensional division. Means here we have now 1n. इस 1n से ये maintain रहता है 1n ही. Before a dividing cell enters meiosis, it undergoes a period of growth called the interphase. Like the mitosis. Mitosis में हमने क्या देखा था? Before preparing for the mitotic division, cell was undergone in the interphase where the cell prepares its ATP, its proteins, DNA, enzymes, etc. Is it? And this is same as interphase जैसे वहाँ होता था. So meiosis takes place in two phases, meiosis first and second. Is it? So here we will see what's going to be happen in the meiosis. Meiosis first we have interphase, that's preparatory phase. Is it? Preparation DNA की यहाँ पर होती थी. Then we have the first meiosis 1, where this meiosis first is reductional division, and it's further of 5 types, that's prophase, metaphase, anaphase, telophase, and then cytokinesis. And these are 4 important phases of meiosis, like the mitosis. But this meiosis first is different from the other, that's this prophase of meiosis is different from the other phases because it's further divided into the 5 phases. That's lipotine, zygotine, pagitine, diplotin, and diakinesis.
Then we have here meiosis second, and meiosis second is further divided like prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Then we have again cytokinesis, and we can simply compare this meiosis second with mitosis. It's same as mitosis, ठीक है ना? So we have meiosis first and meiosis second, and this prophase of meiosis first is longer than any other phase of meiosis or mitosis because it's further divided into liptotin, zygotin, phagotin, diplotin, and diakinesis. Is it? So let's begin here with the interphase. The first, as I told you, we have here interphase where cell is going to be prepare itself for the meiosis. Likewise, we have seen in the previously mitosis. Mitosis में क्या होता था? Cell was preparing itself for the mitotic periods. That's M phase. Same situation is here. The interphase just prior to the entry of the cell into the meiosis is known as the interphase. Easy. Second point is that is during the S phase of pre-meiotic and interphase chromosome replication takes place. It's same as like mitosis में जैसे होता था क्रोमोसोम की क्या होती है replication takes place, that's DNA से और DNA बनेगा, ठीक है ना? So here you can simply see this is the chromatin here, and this is the nuclear envelope, and this is the centrioles, टू पेयर है, यहाँ पर सेंट्रियोल की टू पेयर है, वो भी एक ही पोल पर, एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये क्रोमेटिन होती है इंटरफेज में, दैट्स वाई हमें ये क्रोमेटिन देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आया था जेआरएफ में, इंपॉर्टेंट है। ये क्रोमेटिन किस फेज सेल में एक्टिव होती है, दैट्स इंटरफेज में। क्रोमेटिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन इंटरफेज, एंड क्रोमेटिन में हमें दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है यू क्रोमेटिन, दूसरी होती है हेटेरोक्रोमेटिन। मोस्ट ऑफ द डीएनए इज हियर हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है ना? यूक्रोमेटिन बहुत कम डीएनए होता है हमें, एंड इट्स दोज डीएनए फ्रेगमेंट्स जो क्या दिखाते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है ना? मीन्स दे आर ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव, इनमें ही ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन होगी, एंड दिस इंटरफेस। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अब meiosis first. What's meiosis first? Meiosis first separates the homologous chromosomes and produce two cells with the haploid chromosome number n. For that reason, it's known as reductional division. As I earlier told you, means reductional divisional takes place here. From 2n condition to we have 1n condition of the cell, ठीक है ना? एंड 1n होगा यहाँ पर, मीन्स दो सेलें हमें मिलेंगी, इनमें क्या होगा, हाफ ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स होंगे, ठीक है ना? यहाँ पर 23 एंड 23 इन केस ऑफ वुमेन्स। सिंपली दैट्स होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होगा, सेपरेट होंगे, ठीक है ना? होमोलॉग क्रोमोसोम क्या है वो हम अभी देखते हैं आगे। With haploid chromosome number, that's condition remains here, that's 1n only, is it? Second, meiosis first consists of 4 stages, as I earlier told you. That's why this meiosis first is the longest phase, ठीक है ना, compared to mitosis and meiosis second. So it's further consists of 4 stages, that's prophase, metaphase, anaphase, and telophase first. Let's discuss one by one. यहाँ पर कुछ और पॉइंट है रिगार्डिंग टू प्रोफेज फर्स्ट, दैट इट्स द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कंपेयर टू द प्रोफेज इन माइटोसिस, and it's asked question multiple times, it's asked in NEET and other competitive exams. Second point, it takes about 80 to 85 to 95% of the total time for the meiosis, and also much more complex. It's considered as a complex. ये क्वेश्चन भी आया था, कौन सा फेज होता है ज्यादा ये कम्प्लेक्स, मियासिस का प्रोफेज या माइटोसिस का प्रोफेज, एंड या मियासिस फर्स्ट का प्रोफेज और सेकंड और माइटोसिस का? तो उसके ऑप्शन थी सिंपली मियासिस फर्स्ट का प्रोफेज जो होता है, इट्स मोर कम्प्लेक्स एंड इट्स लॉन्गेस्ट lasting, ठीक है ना? And it's divided into 5 stages, that is liptotin, zygotin, phagotin, diplotin and diakinesis, ठीक है ना? So यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला है, जैसे आप इसे रिमेंबर कर सकते हो, दैट्स लीजापादीदा, ठीक है ना? लिप्टोटीन, यहाँ पर है ये जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड diakinesis, ठीक है ना? So let's begin here the liptotin, that's the first stage of prophase first, ठीक है ना? It's also known as liptotin or liptonema, it's not important,
उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम है लिप्टोटीन और लिप्टोनीमा, कोई भी नाम रख लो। Second point is all the chromosomes began to condense, so they become visible as a fine threads. The important characteristic is that these chromosomes began to condense, means chromosome अब condense होना शुरू हो जाते हैं. इसकी वजह से क्या होता है? They become visible as a fine threads. They appear as a fine threads. You can simply see here that's the chromosome appear fine threads here, or in this picture you can also see here fine threads. ठीक है ना? This is marked increase in the nuclear volume. What happens here when these chromosomes condense, इसकी वजह से क्या होता है? थ्रेड लाइक से ये बन जाते हैं, क्रोमोसोम का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इससे क्या हो जाता है? इंक्रीज. यू कैन सिंपली सी द वॉल्यूम कितना इसका इंक्रीज हुआ है. देन इंपॉर्टेंट इज ऑल द क्रोमोसोम्स आर डायरेक्टेड टू सेंट्रियोल. ये क्रोमोसोम जो है ये यहाँ पर ये सेंट्रियोल है, रिमेंबर टू पेयर सेंट्रियोल्स की, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये क्रोमोसोम्स हैं, दैट्स क्रोमेटिन फॉर्म है. अब ये क्या होगा? दे आर डायरेक्टेड टू द सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल की तरफ आना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर. यू कैन सिंपली सी, अब यहाँ पर ये सेंट्रियोल की तरफ आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर, अगर आप देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, और सिंपली हियर इसकी वजह से क्या होता है? एपियर लाइक अ बुकेट, सो इट्स नोन एज बुकेट स्टेज. इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया था. बुकेट स्टेज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिप्टोटीन. रिमेंबर क्या हो जाता है? ये क्रोमोसोम जब सेंट्रियोल की तरफ आ जाते हैं, दे अपीयर लाइक अ बुकेट, सो इट्स नोन एज बुकेट स्टेज. Also you can see here chromosome appear as a bouquet here, or here you can simply see here too. Is it chromosome visible under the light microscope? ये भी important question है, आया है and can be asked again. क्या है कि क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप जो होती है हमारे पास, उसमें से हम इन क्रोमोसोम्स को सिंपली देख सकते हैं. So this is the liptogen. And this is the second, that's zygotine, that's second stage of prophase first. It's also known as zygonema. Important. The first point regarding this, that is, this stage begins with the initiation of pairing between the homologous chromosomes and it ends with the complete pairing. मीन्स क्या होता है? जाइगोटीन में बिगेन होती है, इनिशिएशन होती है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम. सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है ना, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होंगी, दे स्टार्ट पेयर, ठीक है ना. एंड क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम. अब पहले मैं आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम बताऊं. ये एक क्रोमोसोम है सपोज, एंड दिस इज पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है? मीन इनकी शेप, स्ट्रक्चर, शेप या अपीयरेंस जो होती है वो सेम होती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज होमोलॉगस क्रोमोसोम. अभी होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है? ये पेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना. एंड ends with complete pairing. इसमें क्या हो जाता है? इनकी कंप्लीट जो है पेयरिंग वो हो जाती है इस जाइगोटीन में ही. दैट्स इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है. Then the process of pairing at end to end between the homologous chromosome is known as synapses. पहले मैं आपको बताऊं साइनेप्सिस क्या होता है. जो मैंने यहाँ पर बताया कि साइनेप्सिस इज प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ टू क्रोमोसोम्स, ठीक है ना. क्या होता है साइनेप्सिस? पेयरिंग ऑफ टू क्रोमोसोम्स इज साइनेप्सिस. क्रोमोसोम टू जब जुड़ जाएं, पेयर में आ जाएं, तो उसको कहते हैं साइनेप्सिस. अब ये क्या होता है? ये पेयर होते हैं एट द एंड्स. ये क्रोमोसोम अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी इस फिगर में यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्रोमोसोम्स, ये रहा यहाँ पर एंड पर फ्यूज हुए हैं. हियर यू कैन आल्सो सी दैट क्रोमोसोम आर फ्यूज्ड एट एंड्स. मैं आपको अभी भी ये दिखाऊंगा. ये क्रोमोसोम है होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये इस एंड पर पेयर होंगे, ठीक है ना. एंड इट्स नोन एज होमोलॉगस डायड्स. होमोलॉगस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टू क्रोमोसोम्स हैं, सेम स्ट्रक्चर इनका अपीयरेंस है. Dyads when the two chromosomes lie near close fuse जब हो जाते हैं, इसको कहते हैं डायड, ठीक है ना. यहाँ पर आप देख सकते हो डायड इसे कहते हैं, वन क्रोमोसोम एंड सेकंड क्रोमोसोम, दिस इज डायड. लेकिन इसको हम और एक भी कहते हैं, दैट्स टेट्रॉड, ठीक है ना. टेट्रॉड क्या होता है? हियर इज फोर सिस्टर क्रोमेटिड्स. जैसे आपको पता है ये एंड ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एंड इसकी ये एक दो एंड इसकी भी तीन चार, ये हो गई फोर सिस्टर क्रोमेटिड्स, दैट इज 1 2 3 4 एंड इट्स नोन एज टेट्रॉड. दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं? टेट्रॉड.
एंड डायड क्यों कहते हैं, या डायड को हम और एक नाम बोलते हैं, दैट्स बाइवैलेंट। बाइवैलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टू क्रोमोसोम्स जो हैं वो नजदीक आ गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ये जो टेट्राड्स या डायड्स बनते हैं ये इस ज़ाइगोटीन स्टेज में कंप्लीटली विजिबल नहीं होते हैं। ये इसके बाद जो आने वाले स्टेज हैं दैट्स पैचिटीन। पैचिटीन में हम देखेंगे ये क्रोमोसोम, ये क्या होते हैं, ये डायड्स आर कंप्लीटली विजिबल इन दी दैट्स पैचिटीन। लेकिन इनकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, इन ज़ाइगोटीन। रिमेंबर इट्स इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पेयरिंग हो रही है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की। Another point is that the synaptonemal complex is formed during these zygote state. Now, what's this synaptonemal complex? This synaptonemal complex is that's this. ये जो आपको यहाँ पर ये कुछ दिख रहा है, this is synaptonemal complex. What's the synaptonemal complex? यही वो चीज है जो इन दो क्रोमोसोम्स को अटैच करवाती है, that's इनकी पेयरिंग करवाती है, that's this. ये कुछ ऐसे बन जाता है इनके दरमियान, इसको हम कहते हैं synaptonemal complex. So what's this? This synaptonemal complex, it's a complex or protein complex जो इन दो क्रोमोसोम्स को पेयरिंग करने में हेल्प करता है। एंड आस्क्ड क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है एंड एम्स में भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। At the completion of zygote, the pair homolog take the form of bivalents. As I earlier told you, क्या होता है, ये अब जो पेयर क्रोमोसोम हो जाते हैं ये बाइवेलेंट बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था पहले ही, ठीक है ना। बाइवेलेंट या टेट्राड जो आपको समझाया था, यहाँ पर ये फ्यूज हो जाएंगे, ये बन जाएगा ये कुछ ऐसे, इसे हम कहते हैं बाइवेलेंट बन जाएगा, ठीक है ना। The number of bivalents in each species is equal to the haploid number. ठीक है ना, ये डिपेंड होता है बाइवेलेंट अपॉन द हैप्लॉइड नंबर, ठीक है ना। जितने हैप्लॉइड नंबर होंगे उतने क्या होंगे, बाइवेलेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पर भी फिर पेयरिंग हो रही है, ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक क्रोमोसोम है ये ब्लू वाला, दूसरा है ये क्रोमोसोम, फर्स्ट क्रोमोसोम एंड सेकंड क्रोमोसोम, इनके बीच बना है ये कुछ जो मैंने दिखाया, ये जो आपको दिख रहा है दैट्स साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज काइनेटोकोर, दिस इज सेंट्रोमियर एंड दे आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। एंड दिस इज द जाइगोटी। एक पॉइंट जो मैं आपको बोलना भूल गया अबाउट द लिप्टोटीन एंड जाइगोटीन, दैट इज दे आर बोथ रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड, ठीक है ना, शॉर्ट लिव्ड, दैट इज लिप्टोटीन एंड जाइगोटीन आर शॉर्ट लिव्ड, ठीक है ना। वो दो फेज जो होते हैं दे आर शॉर्ट लिव्ड अमंग द फेज ऑफ दैट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। नाउ दिस पैचिटीन हियर इज इट्स आल्सो नोन एज पैचिनीमा, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस इज कंप्लीट। जो साइनेप्सिस पीछे, साइनेप्सिस मैंने आपको क्या बताया था, दैट्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो अब कंप्लीट हो चुकी होती है। अब क्या होता है, टू होमोलॉगस of each bivalent appear to be attached with each other at one or more point. These attachments are known as chiasmata. मगर ये chiasmata की formation जो होती है it takes place in the pachytene and it's completely visible, and the next phase जो हम पढ़ने जा रहे हैं that's diplotin, ठीक है ना। डिप्लोटीन में ये विजिबल होगा ये chiasmata, ठीक है ना। लेकिन इसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, इन पेचिटीन। नाउ व्हाट्स दिस चियाज़मेटा, इट्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये टू होमोलॉगस क्रोमोसोम जहाँ पर अटैच होंगे इसको हम कहते हैं चियाज़मेटा, ठीक है ना। दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज चियाज़मेटा। इसको कंपेयर मत करना जो मैंने आपको साइनेप्सिस बताया था। साइनेप्सिस इज सिंपली इट्स पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। लेकिन ये क्रोमोसोम जिस एंड पर पेयर होते हैं वहां पर उस जगह को हम कहते हैं चियाज़मेटा, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज चियाज़मेटा। यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं इस फिगर में चियाज़मेटा अपीयर्स हियर, दैट्स where the two non-sister chromatids of homologous chromosomes are paired. ये बात भी आपको याद रखनी है, जब क्रोमोसोम पेयर होते हैं तो इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पेयर होती हैं, बिकॉज इट्स अ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है,
इस क्रोमोसोम की अलग सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इसकी भी दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर एक ही की सिस्टर क्रोमेटिड्स ए से फ्यूज हो जाती तो इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स फ्यूज। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स फ्यूज। एक इसकी होती है सिस्टर क्रोमेटिड, दूसरी इसकी होती है, ठीक है ना। एंड चियोजमेटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द पैचिटीन, बट विजिबल होता है ये डिप्लोटीन में। यहाँ पर ये बाइवेलेंट आपको दिखेगा, 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। यहाँ पर साइनेप्सिस होती है, दैट्स फ्यूजन ऑफ 2 क्रोमोसोम्स। दूसरा पॉइंट रिगार्डिंग द पैचिटीन इज दैट इज enzyme recombinase, that's endonuclease plus ligase is essential for the crossing over। ये अब क्या है, ये क्रॉसिंग ओवर जो होती हैं, अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो ऐसे फ्यूज हो जाती हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो यहाँ पर फ्यूज हो जाएंगी, इनके लिए एक एंजाइम हमें चाहिए जो उसे हम कहते हैं रिकम्बिनेस। रिकम्बिनेस की क्या फंक्शन होती है, इट्स ये इन क्रॉसिंग ओवर में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को क्या करता है, अटैच रखता है। एंड दिस रिकम्बिनेस एंजाइम इज फॉर्म्ड ऑफ two, that is essential parts, that's endonuclease and ligase। endonuclease is what, endonuclease cuts the DNA, ठीक है ना। endonuclease cuts DNA एट कहाँ पर, इनर साइड, यहाँ पर ये कट करेगा, इसे हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। जो यहाँ पर कट करेगा दैट इज आउटर साइड में, इसे हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस आर दोज व्हिच एंजाइम्स व्हिच कट द डीएनए, ठीक है ना। एंड लाइगेस हियर इज एंजाइम व्हिच कनेक्ट्स द टू पार्ट्स ऑफ डीएनए, ठीक है ना। जो 2 डीएनए थ्रेड्स को कनेक्ट करता है ऐसे, इसको हम कहते हैं लाइगेस, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, यहाँ पर ये दूसरी है, इनकी पहले ये कट करेगा एंडोन्यूक्लियस से, जब कट होगा ऐसे फिर इनको लाइगेस आ जाएगा, वो ऐसे फ्यूज कर देगा, हैंस हमें क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। दैट्स व्हाई दिस एंजाइम रिकम्बिनेस इज इम्पोर्टेंट। पर मैंने बताया यहाँ पर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी होता है, उसकी क्या फंक्शन है, वो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम को नजदीक रखता है, अटैच रखता है, ठीक है ना। डिफरेंस रखना मालूम, एंजाइम रिकम्बिनेस एंड ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या है। Recombination nodules between non-sister chromatid of homologous pair develop, ठीक है ना। रिकम्बिनेशन नोड्यूल आप बनते हैं, व्हाट्स दिस रिकम्बिनेशन नोड्यूल, मैंने आपको बताया था यहाँ पर फॉर्मेशन होती है चियाजमेटा फॉर्मेशन। चियाजमेटा इज दैट इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इज चियाजमेटा। बट on the other hand, here is recombination nodules। recombination nodule formation takes place firstly in पैचिटीन। अब ये क्या होता है, ये प्रोटीन का कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पर अपियर हो जाते हैं। सपोज लेट मी ड्रॉ इट विद द ब्लू। अगर मैं यहाँ पर ये ड्रा करूँ ऐसे, यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर सा हमें नजर आ जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, दैट्स नोन एज रिकम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है ना। ये रिकम्बिनेशन नोड्यूल अब है, ठीक है ना, रिकम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है ना। अब रिकम्बिनेशन नोड्यूल में ये जो चियाजमेटा बनता है, इसमें भी आपको क्या रखनी है, डिफरेंस मालूम। रिकम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है एंड चियाजमेटा क्या होता है। चियाजमेटा इज point of attachment of 2 chromosomes and recombination nodule is proteinous structure which appear at the point of attachment of 2 non-sister chromatids, ठीक है ना। Another point is crossing over is a precise breakage, swapping, and reunion between the non-sister chromatids. As I earlier told you, and this function is done by this endonuclease. What is done? It firstly breakage, that's it cuts with the DNA, that's non-sister chromatids with these endonucleases. Then swapping or reunion. Then इसके बाद ये क्या करता है, ligase enzyme से इनको फिर से जोड़ देता है, एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है, 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं यहाँ पर ऐसे वो फ्यूज हो जाती हैं। लाइक लेट मी शो यू हियर, दैट्स ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, दिस इज होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है ना, पेयर। यहाँ पर इनकी कटिंग हुई होगी पहले, फिर इनका लाइगेस हुआ होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेस, फिर यहाँ पर ये ऐसे जुड़ गई, ठीक है ना। इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। नाउ व्हाट्स दिस क्रॉसिंग ओवर, इट्स द लाइक एज द सिनेप्सिस फ्यूजन ऑफ 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर कुछ नोड्यूल सा स्ट्रक्चर नजर आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेशन नोड्यूल। एंड जिस पॉइंट पर ये 2
क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अटैच हो गई, इसे हम क्या कहते हैं, चियाज़मेटा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखो कंप्लीट से फिर ये क्रोमोसोम अलग हो गए हैं, लेकिन क्या है, क्रॉसिंग ओवर हो गई है। क्रॉसिंग ओवर के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। व्हाट इज दैट? दैट्स क्रॉसिंग ओवर मेक्स द न्यू जीन combination and which are an important source of genetic variation in a population. Now this क्रॉसिंग ओवर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है ये मियासिस का। इसमें क्या होता है, दो क्रोमोसोम्स का जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता है, एंड दिस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरिएशन इन पॉपुलेशन, और जेनेटिक वेरिएशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं ये कैसे होता है, लेट्स सी दिस क्रोमोसोम हियर। इस क्रोमोसोम पर है ए बी सी कैपिटल जीन, यहाँ पर भी सेम होंगे ए बी सी, लेकिन दिस क्रोमोसोम हैज वन ए बी सी स्मॉल ए बी सी जीन्स एंड दिस हैज ए बी सी दैट्स कैपिटल। अब यहाँ पर क्या हो गया है, इनका एक्सचेंज होगा यहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर हो गई। ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर जब ये क्रॉसिंग ओवर जब यहाँ पर हो गई, तो अगर मैं आपको दिखाऊं जेनेटिक मटेरियल शेयर हो गया होगा कैसे। हियर इज अगेन ए बी सी दैट्स कैपिटल, यहाँ पर है लेकिन कैपिटल ए कैपिटल बी, बट हियर इज स्मॉल सी। अगर आप इसी तरह यहाँ पर देखो, स्मॉल ए स्मॉल बी, बट हियर इज कैपिटल सी। ठीक है ना। मीन्स जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हुआ होगा, हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आपको देखे यहाँ पर रेड कलर है ये, एंड यहाँ पर ब्लू कलर है। मीन्स कलर से भी आपको पता चल रहा है कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया है। ठीक है ना। इसी तरह क्या होती है क्रॉसिंग ओवर, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर दैट्स नेक्स्ट जनरेशन, और वी कैन से सिंपली इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, एंड जेनेटिक वेरिएशन इज ड्यू टू दिस क्रॉसिंग ओवर। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है, दैट्स पैचेटिंग। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर फिर से देख लेते हैं, रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने इसमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा। पैचेटिन में यहाँ पर क्या बनेगा, क्रोमोसोम चियाज़मेटा फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। ठीक है ना। फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। ठीक है ना। दूसरा हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर एंजाइम रिकम्बिनेस की हमें नीड है, यहाँ पर रिकम्बिनेशन नोडुल्स यहाँ पर बनेंगे। ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर होगी, क्रॉसिंग ओवर इंपॉर्टेंट है वेरिएशन के लिए। ठीक है ना। नाउ अगर हम यहाँ पर बात करें डिप्लोटीन, दैट इज द अनदर स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। डिप्लोटीन क्या है, डिप्लोटीन स्टेज इज आल्सो नोन एज डिप्लोनीमा। द डीएनए रिकम्बिनेशन इज कंप्लीट हियर इन दिस स्टेज। दैट्स डिप्लोटीन में क्या होती है, डीएनए की रिकम्बिनेशन जो हो रही थी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, नाउ दैट्स कंप्लीट हियर। The chromatids continue to shorten and thicken, and four sister chromatids in the group are called tetrad. ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये टेट्राड यहाँ पर बनता है। मैंने जो आपको बताया था वहां पर दैट इज साइनेप्सिस हो रही थी, फिर चियाज़मेटा बन रहा था। ठीक है ना। वहां पर फिर टेट्राड बनता था या बाइवेलेंट, वो कंप्लीटली विजिबल होता है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखो चियाज़मा है ये, या टेट्राड है ये, क्योंकि फोर क्रोमोसोम्स, टू क्रोमोसोम्स होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर हो गए हैं। अब ये कंप्लीट विजिबल होता है यहाँ पर। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट ऑफ दिस डिप्लोटीन फेज, दैट इज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो था वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अब हम क्रोमोसोम्स की पेयर इनमें जेनेटिक जो मटेरियल था वो एक्सचेंज हो चुका है ना। अब क्या होगा, ये क्रोमोसोम अगेन स्टार्ट करेंगे रिपल होना। दैट्स व्हाई दिस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ने क्या किया था, इसी ने इन दोनों को नजदीक रखा था, फ्यूज्ड रखा था। अब जब यही डिग्रेड हो जाएगा, इट मीन्स नाउ दिस क्रोमोसोम स्टार्ट पुलिंग ईच अदर एट अपोजिट। ठीक है ना। चियाज़मा दैट्स एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली विजिबल हियर। जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता था दैट्स चियाज़मा, वो कंप्लीट यहाँ पर उसकी फॉर्मेशन हो गई होगी, एंड क्या है वो कंप्लीटली विजिबल होता है यहाँ पर। मैंने आपको बताया था इस वाले इन द प्रीवियस फेज, दैट इज ज़ाइगोटीन, दैट्स पेचिटीन फॉर्मेशन ऑफ चियाज़मेटा टेक्स प्लेस, बट इट्स विजिबल इन दिस डिप्लोटीन फेज। ठीक है ना। अनदर इज दैट इज the paired chromatids began to pull apart. जो paired chromatids थी, they start pulling apart because their complex यहाँ पर जो था साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स वो डिग्रेड होना शुरू हो गया। दैट्स व्हाई दे आर स्टार्ट टू बिगिन पुल अपार्ट, causing the strands to separate longitudinally. अब ये क्रोमोसोम्स की क्या होंगी, इनकी सेपरेशन होगी यहाँ पर।
ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखो, दिस इज chiasma एंड दिस chiasma इज कम्प्लीटली विजिबल हियर, जो मैंने आपको बताया था। एंड दिस इज द स्टेज ऑफ डिप्लोटीन। यहाँ पर क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया है होमोलॉगस क्रोमेटिड्स के दरमियान जेनेटिक मटेरियल, एंड chiasma फॉर्मेशन भी यहाँ पर हमें मिल गई है एंड कम्प्लीटली विजिबल भी है। Diplotin may last long up to the months or years in oocyte of the seminal debates. Remember this point is important. ये question आता भी है, asked question है ये. Diplotin stage, ये longest phase is considered this longest phase among the 5 phases of prophase first. ठीक है ना, उसमें से यही होता है, that's diplotin. क्यों? ये क्या होता है, ये सम जो होते हैं वर्टिब्रेट्स जो होते हैं लाइक ह्यूमन्स की अगर हम बात करें, इनमें क्या रहता है, उस साइड रहता है फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है ना, अप टू मंथ्स और ईयर्स। लाइक ह्यूमन फीमेल्स में अगर हम देखें अप टू प्यूबर्टी ये रहता है 13 ईयर तक उस साइड अरेस्ट रहता है, ठीक है ना। उसके बाद जब ओवरी में इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, देन उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट शुरू हो जाती है। दैट्स व्हाई दिस इज हियर, इट लास्ट्स मंथ्स और ईयर्स, इज इट? And this is the what diplotin. Now let's start here the last phase of prophase. First, that's diakinesis. And what's happening in diakinesis? The chromosome became shortened and thicker due to condensation. Now यहाँ पर क्या हो जाती है, कंडेंसेशन अगेन हो जाती है, दैट्स रिकंडेंसेशन, ठीक है ना, कंडेंसेशन होती है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट, nucleolus and nuclear envelope disappear towards the end of the diakinesis, ठीक है ना। nucleolus and nuclear appear, that's Golgi complex, other materials we have that start appears again in the in this diakinesis. The spindle apparatus become organized. The spindle apparatus जो है, that's this, ठीक है ना, these spindle apparatus they become organized, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखो, इनकी फॉर्मेशन भी अब कंप्लीट स्टार्ट शुरू होना हो गई है। यहाँ पर दिस इज स्पिंडल फाइबर एंड हियर दिस इज द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स एंड दिस इज दिस टू सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड दिस इज द सेंट्रोमियर। द सेंट्रियोल माइग्रेट अवे फ्रॉम वन अनदर। ये सेंट्रियोल क्या है, ये एक दूसरे से अब स्टार्ट शुरू हो जाते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। अनदर इज टर्मिनलाइजेशन ऑफ द chiasma। जो chiasmata हमें फॉर्मेशन हुई थी, दैट स्टार्ट टर्मिनल। अब ये क्रोमोसोम ऐसे फिर से हमें हो जाएंगे, ये जो इनकी ऐसे फ्यूजन था यहाँ पर chiasma मैंने क्या बताया था, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू क्रोमोसोम्स, इसकी टर्मिनलाइजेशन हो जाती है। ऑल्सो हम कह सकते हैं रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स जो हैं वो अब हमें अपियर नहीं हो गए, एंड दिस इज द डायाकाइनेसिस, ठीक है ना। एंड दिस वाज द एंड ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट हियर विद द मेटाफेज। मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज जैसे माइटोसिस में होता था, कंडीशन तो वैसे ही होगी लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट होंगे। वो देखते हैं क्या है। ऑल द बाइवैलेंट माइग्रेट विद इन अ सेल माइग्रेट टू मेटाफेज प्लेट। अब क्या है, जैसे हमने देखा था मेटाफेज प्लेट बनता था, दैट्स क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटोरियल प्लेट। सेम कंडीशन इज हियर, बाइवैलेंट्स हैं यहाँ पर, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अब अटैच ही हैं, ऐसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है ना, ये ऐसे नजदीक है, ये बाइवैलेंट्स हैं, ठीक है ना। ये क्या होगा, मेटाफेज प्लेट में ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड इन केस ऑफ माइटोसिस में हमें क्या था, सिर्फ क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम ऐसे मेटाफेज प्लेट पे आ जाता था, ठीक है ना। दिस वाज द कंडीशन इन केस ऑफ माइटोसिस। लेकिन मियासिस में क्या है, यहाँ पर हमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ऐसे, ठीक है ना, मेटाफेज प्लेट पे। यहाँ पर वन होमोलॉगी इज पुल्ड अबोव द मेटाफेज प्लेट, द अनदर बिलो। क्या हो जाता है, एक यहाँ पर इधर खींची जाएगी, अब एक यहाँ पर खींची जाएगी, ठीक है ना, ये पुल होंगे अब अबोव द मेटाफेज प्लेट। The centromere of the homologous chromosome of each bivalent stretch out on either side. क्या होगा, अब ये जो सेंट्रोमियर हैं, जैसे क्रोमोसोम में यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है, इनकी भी अब पुलिंग होगी, ठीक है ना, पुलिंग इनकी भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, स्ट्रेचिंग इनकी भी अब स्टार्ट शुरू होना हो जाएगी यहाँ पर, दैट्स इन मेटाफेज। ऑल्सो क्या होगा इस मेटाफेज फर्स्ट में, दैट्स centrioles are at opposite poles at the
पोल्स ऑफ द सेल, जैसे यहाँ पर है सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स ऑफ सेल। देन इसके बाद क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल ऑफ द सेल अटैच टू वन क्रोमोसोम एंड द स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द अपोजिट पोल अटैच टू द होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब क्या होगा, यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, यू कैन सिंपली सी दी स्पिंडल फाइबर्स। अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसे क्रोमोसोम की पेयर हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या होगा, लेकिन ये क्रोमोसोम अब फ्यूज्ड नहीं है क्योंकि इनमें साइनेप्सोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़े से नजदीक नहीं होंगे, नजदीक होंगे लेकिन फ्यूज्ड नहीं होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, इन क्रोमोसोम्स को अपार्ट पुल करेंगे, जैसे हमको पता है स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को पुल करती है, जैसे हमने माइटोसिस में देखा था। ऐसे ये स्पिंडल फाइबर्स एक सेंट्रोमियर से यहाँ से होंगी, दैट्स फ्रॉम दिस, दैट्स सेंट्रोमियर से, दैट्स दिस सेंट्रियोल से ये जो स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगी, ये एक सेंट्रोमियर पर यहाँ अटैच होंगी, एंड फ्रॉम द अदर सेंट्रियोल अराइज आल्सो स्पिंडल फाइबर्स एंड दी स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द अदर सेंट्रोमियर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब इसके बाद क्या होगा, खिंचाव होगा इन सेंट्रोमियर्स का, वो हम देखते हैं कैसे होगा, वो होगा नेक्स्ट फेज में। नाउ लेट्स स्टार्ट हियर विद द एनाफेज फर्स्ट, ठीक है ना। अब क्या होगा एनाफेज में, क्रोमोसोम्स मूव टू द अपोजिट पोल्स, लाइक रिकॉल माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता था, एक न्यूक्लियस में ऐसे क्रोमोसोम्स थे, अब ये क्रोमोसोम्स क्या थे, ये ऐसे थे ये क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम चले जाते थे, इनको स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से खींच रही होती थी, ठीक है ना। ये स्पिंडल फाइबर्स कुछ ऐसे यहाँ से खींच रही होती थी, ठीक है ना। ये सेंट्रियोल थे, यहाँ पर सेंट्रियोल थे, ये स्पिंडल फाइबर्स थी, ठीक है ना। ये सिस्टर क्रोमेटिड इनको खींच रही थी अपोजिट पोल्स की तरफ, लेकिन यहाँ भी अब क्रोमोसोम्स को पुल होगा अपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर पोल है, इनकी तरफ खींचा होगा, जैसे आप देखते हो मेटाफेज प्लेट इज ब्रोकन हियर, ठीक है ना। क्रोमोसोम अपार्ट जा रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द काइनेटोकोर फाइबर इंट्रैक्ट विच कॉज द मूवमेंट। अब क्या होगा, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये काइनेटोकोर फाइबर, मैंने आपको पहले ही बताया था माइटोसिस में काइनेटोकोर क्या होता है। काइनेटोकोर इज नथिंग बट प्रोटीन कम्प्लेक्स जो हेल्प करता है इन स्पिंडल फाइबर्स को अटैच होने में, दैट इज सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ, और इसी के साथ ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं अटैच रहती हैं, ठीक है ना, इस काइनेटोकोर के साथ, ठीक है ना। अब लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पर माइटोसिस एंड मियोसिस में, दैट्स डिफरेंस ये होती थी, माइटोसिस में यहाँ पर हमें ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती थी, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे ये फिगर में अगर यहाँ पर ड्रा करूँ, यहाँ पर दैट इज ये हमारी कुछ सेल हैं, ऐसे ये क्रोमोसोम है, जब ये पुल हो जाएंगे फिर कुछ ऐसे हमें ये हो जाता था कंडीशन, ठीक है ना। दिस वाज द कंडीशन इन केस ऑफ माइटोसिस, ठीक है ना। माइटोसिस में इनको ऐसे पुल किया जाता था विद द हेल्प ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ फेज डिफरेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम ऐसे क्लोज्ड थे, क्रोमोसोम लाई नियर टू ईच अदर होमोलॉगस पेयर। सो अब यहाँ पर जो पुल हो रहे हैं वो एक क्रोमोसोम अलग हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो सिर्फ क्रोमेटिड्स ही, हाफ क्रोमोसोम्स की टू ही सिस्टर क्रोमेटिड्स सेंट्रियोल्स की तरफ, दैट इज अपोजिट पोल्स की तरफ इंटरेक्ट हो रही हैं, ठीक है ना। यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है, डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस इज दैट सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन जॉइंड आफ्टर द मेटाफेज इन द मियोसिस। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ये अटैच ही है यहाँ पर मियोसिस में, अगर आप देखो 1 2 3 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड दीज 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर still attached to the respective chromosomes, but on the other hand where in माइटोसिस दे सेपरेट, लाइक जैसे मैंने आपको इस फिगर में दिखाया, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है सेपरेट हो गई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एनाफेज फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, ज्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट द ओरिजिनल क्रोमोसोम सेपरेट, ओरिजिनल क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर सेपरेट है, यू कैन सिंपली सी दीज आर स्पिंडल फाइबर्स, दिस इज सेंट्रियोल, ये स्पिंडल फाइबर्स ये क्रोमोसोम अब सेपरेट हो गए यहाँ पर। सो द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम 2n to n, ठीक है ना, येट द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन टुगेदर। मैंने आपको पहले ही कहा था मियोसिस फर्स्ट की ब्यूटी ये है, हियर वी गेट 2 from 2n we get 1n and 1n condition, this is the beauty of meiosis। बट माइटोसिस में क्या था, 2n से ये कंडीशन 2n ही रहती थी एंड वी गॉट द न्यू सेल। फिर हमने इसके बेनिफिट्स देखे थे माइटोसिस में, माइटोसिस वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ,
इसी तरह हम मियासिस के भी एंड पर देखेंगे बेनिफिट्स क्या हैं, ये मियासिस हैपेंस, व्हाई मियासिस टेक्स प्लेस, फिलहाल हम पढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था मियासिस फर्स्ट की ब्यूटी ये है कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, वो यहीं पर होते हैं, आप देख सकते हो, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम 2n to n। मगर यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं ये क्रोमोसोम के साथ ही अटैच रहती हैं, लेकिन क्या होता है क्रोमोसोम से हमें क्या मिलता है, अनदर, लेकिन 2n ही कंडीशन होती है हमें, ठीक है ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मियासिस फर्स्ट। Now let's begin with the last phase of, that is final phase of meiosis first, that's telophase first. The homologous chromosome complete their migration to the opposite poles because the shortening of spindle fibers. जैसे जैसे ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते जाएंगे उतना उतना ये इन क्रोमोसोम्स को अपने साथ ही खींचते जाएंगे, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स क्या है, ये माइग्रेट हो जाएंगे टुवर्ड्स दी होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, अब कंप्लीट माइग्रेट हो जाएंगे टुवर्ड्स दी दैट्स पोल्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्रोमोसोम इधर कितना आ रहे हैं, ठीक है ना। द न्यूक्लियर एनवेलप ऑर्गेनाइज्ड अराउंड दी टू क्रोमोसोम ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम। अब ये क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप्स यहाँ पर फिर डेवलप हो जाती हैं अराउंड इन क्रोमोसोम्स के अराउंड भी, इन क्रोमोसोम्स के अराउंड भी। आपने पहले देखा था प्रोफेज में जब स्टार्ट हो जाती थी डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता था। अब लेकिन वो क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से यहाँ पर इन क्रोमोसोम्स को अलग से यहाँ पर घेर लेगी। द न्यूक्लियोलस और रीपियर, न्यूक्लियोलर हम कह सकते हैं, दैट्स राइबोसोम्स हम कह सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कह सकते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस हम कह सकते हैं, अगेन रीपियर इन दिस टीलोफेज, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ टीलोफेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड क्रोमो क्या है, हमें क्लीवेज हो रहा है, एक सेल यहाँ पर मिल रही है एंड एक सेल यहाँ पर मिलने जा रही है, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पर 1n होगा, 1n, एंड हियर वी हैव 1n। नाउ अब क्या होता था, जैसे माइटोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगी, सेम फिनोमेना विल हैपन हियर आफ्टर meiosis we have the cytokinesis. What is cytokinesis? It involves the formation of furrow resulting in the packeting of the cell into two cells. Now जब ये क्रोमोसोम अब सेपरेट हो गए हैं, अलग हो गए हैं, अब इनकी साइटोकाइनेसिस होगी, मीन्स इनका ये फुरो आ जाएगा, ये फुरो इनको एनवेलप कर लेगा, ठीक है ना। इसकी वजह से हमें क्या मिलेंगी, टू सेपरेट सेल्स मिलेंगी फर्स्ट। Second point is at the end of telophase first and the cytokinesis, two daughter cells are produced, as you can see here, two daughter cells are here, ठीक है ना, each with one half of number of chromosome, as I told you earlier that here will be the chromosome number half and here two will be it half, ठीक है ना, of the original parent cell। original parent cell से 2n था, लेकिन उससे क्या हमें मिला, 1n, 1n, is it, this is cytokinesis। Now let's discuss the interkinesis. As I told you, interkinesis. So what's interkinesis? Interkinesis second is similar to the interphase. As interphase जो होता था माइटोसिस का, ठीक है ना, या मियासिस का हुआ था, एंड इट्स सेम एज दिस, बट डिफरेंट क्या है यहाँ पर वो मैं आपको बताता हूँ। सो पहले मैं अगर आपको बताऊँ व्हाट्स इंटरकाइनेसिस, इट्स गैप between meiosis first and meiosis second is called interkinesis. Gap between meiosis first and meiosis second is interkinesis. The second point is preparation of the meiosis second occur during the interkinesis. Important है यहाँ पर interkinesis में ही preparation होती है किसकी, दैट्स जो मियासिस सेकंड के लिए प्रिपरेशन, जो कुछ भी प्रिपेयर करना है, दैट्स टेक्स प्लेस इन दिस इंटरकाइनेसिस। आल्सो दिस इंटरकाइनेसिस इज लाइक द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, बट व्हाट्स डिफरेंस हियर, यहाँ पर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज एब्सेंट, ठीक है ना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज एब्सेंट। It is same as the interphase of mitosis, but replication of DNA is here absent. So this is the beauty of this interkinesis. Now let's discuss here the meiosis second. Meiosis second is quite simple, pretty simple. If you people know the mitosis, if you have read the mitosis keenly, then you can simply understand the meiosis. It's same as the mitosis, ठीक है ना। अब क्या होता है, meiosis second is the second part of meiotic process,
ठीक है ना। Meiosis second consists of firstly like जैसे होते थे prophase, metaphase, anaphase and telophase. So first is here the prophase, but here is prophase second because it's meiosis second. Each dyad is composed of a pair of sister chromatids attached by a common centromere. ये क्रोमोसोम्स क्या है, अब ये कॉमन सेंट्रोमियर के साथ ऐसे अटैच होगा ये क्रोमोसोम सेल में, ठीक है ना। ये हमें एक सेल थी, ये फिर दूसरी सेल में भी ऐसे ही क्रोमोसोम थे। देन उसके बाद क्या होगा, मेटाफेज सेकंड होगा। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, सेंट्रोमियर्स आर पोजिशनड एट द इक्वेटोरियल प्लेट, जैसे इक्वेटोरियल प्लेट बनता था। प्रोफेज फेस्ट में क्या होगा, और भी कुछ होगा, जैसे आपने देखा था ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिग्रेड होती हैं, ठीक है ना। वो चीज़ें बाकी जो आपने देखी वो प्रोफेज सेकंड में यहाँ सेम होगी। मेटाफेज में जैसे आपने देखा था क्रोमोसोम लाइड एट द इक्वेटोरियल प्लेट, हियर यू कैन सी हियर क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे है यहाँ पर, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर डिवाइड एंड द सेंट्रोक्रोमेटिड्स ऑफ ईच डायड आर पुल्ड टू द अपोजिट पोल्स। अब क्या होगा इस एनाफेज सेकंड में, ये जो सेंट्रोमियर हैं ये डिवाइड होंगे, ठीक है ना। इस क्रोमोसोम से फिर ऐसे अलग हमें ऐसे फिर अगेन जैसे माइटोसिस में कंडीशन, वही कंडीशन हमें फिर यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेंट्रोमियर ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। सिस्टर क्रोमेटिड्स ईच डायड्स आर पुल्ड अपोजिट पोल्स। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये अब स्टार्ट हो जाएंगे पुल करना इधर, ठीक है ना, ऐसे जो आपने माइटोसिस में देखा था। अब यहाँ पर है टीलोफेज सेकंड। अब टीलोफेज सेकंड में क्या होगा, लाइक जैसे माइटोसिस में होता था, वन मेंबर ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ईच पोल्स, ठीक है ना। वन पेयर या क्रोमोसोम्स की होगी यहाँ पर ईच पोल की तरफ। लेकिन मियासिस फर्स्ट में हमने क्या देखा था, फुल क्रोमोसोम था। अगर ये मियासिस फर्स्ट है, ए से एक क्रोमोसोम था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए से ही कुछ कंडीशन, यहाँ पर ये पोल्स की तरफ होगा, ए से एक ही दो ही सिस्टर क्रोमेटिड्स होगी, ठीक है ना, ईच पोल। ईच क्रोमोसोम इज रेफर्ड एज मोनेट। इसको हम अब कहते हैं मोनेट, क्योंकि हम वहां पर डायड वायड देते थे, क्योंकि वो आपने देखा क्यों कहते थे, यहाँ पर क्यों कहेंगे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब मोनेट क्या है, यहाँ पर क्या होता है, मैटरनल एंड पैटर्नल। पैटर्नल होती है दैट इज पेरेंटल, दैट्स फादर की तरफ से जो होते हैं क्रोमोसोम्स, एंड मैटरनल होते हैं जो मदर की तरफ से क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। ये अब क्या होंगे, इनकी कॉम्बिनेशन भी होती है, अब ये ऐसे होते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। न्यूक्ली रिफॉर्म अराउंड द क्रोमोसोम्स एट द पोल्स। फिर उसके बाद हमने देखा था टीलो फेज में क्या होता था, टीलो फेज में न्यूक्लियर एनवेलप अगेन बनती थी, वो यहाँ पर होगी, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एंड फाइनली फोर हैप्लॉइड गेमेट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मेयोटिक यूनिट। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हमें दो सेल्स से फोर मिलेगी, क्योंकि हमने मियासिस फर्स्ट में वी हैव द टू सेल्स। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, मियासिस फर्स्ट में हमें क्या था, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। मियासिस फर्स्ट में हमने देखा था इस सेल से ऐसे हमें टू सेल्स निकली थी, ठीक है ना। अब क्या होगा, दैट इज मियासिस सेकंड से हमें इस सेल से टू सेल्स निकलेंगी, एंड इस सेल से टू सेल्स निकलेंगी। फाइनली वी हैव द फोर सेल्स, ठीक है ना। अब हमारे पास कितनी सेल्स होंगी, फोर सेल्स होंगी। यही मैंने बताया, न्यूक्लियर एनवलप एनवलप जो है वो फिर से हो जाएगी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा, दे विल रिपेयर अगेन, एंड देन साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस, ये जो सेल्स अब बनेंगी यहाँ पर, ये जो ऐसे क्रोमोसोम आ जाएंगे, फिर इनमें क्या होगा, इनकी एनवलप बन जाएगी, ठीक है ना। फिर हमें साइटोकाइनेसिस के बाद इनकी एनवलप एनवलप जब बनेगी, फिर हमें ऐसे फोर सेल्स मिलेंगी, लाइक यू कैन सी, इससे एक सेल एंड इससे एक सेल, एक सेल, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ meiosis second. Now let's see here the functions of meiosis or benefits of meiosis. meiosis से हमें क्या फायदा मिलता है, ठीक है ना। फर्स्टली प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड गेमेट्स। हैप्लॉइड जो गेमेट्स हम में बनते हैं, ठीक है ना, गेमेट्स जो हैं, सपोज ये मेल गेमेट है, जर्म सेल है, इससे हमें सेल्स मिलेंगी ऐसे, ठीक है ना। एंड दिस फिनोमिना इज ड्यू टू, यहाँ पर ये 2n होगी, फिर ये वहां पर 1n, ये सभी 1n होगी, ठीक है ना। एंड दिस इज ड्यू टू दिस meiosis, so that the fertilization restore the normal somatic
2n क्रोमोसोम नंबर। फिर जब क्या होता था, अगर मियासिस नहीं होती, सपोज अगर मियासिस नहीं होती, मैं आपको बताऊं 2n कंडीशन थी, ठीक है ना। अब ये 2n कंडीशन जब यहाँ से मेल स्पर्म अब निकलता, ठीक है ना, फिर यहाँ से 2n मेल हुआ निकलता, एग निकलता, ठीक है ना। यहाँ पर अब जब ये फ्यूज हो जाते तो जाइगोट मिलता। जाइगोट में कैसी कंडीशन होती थी, जाइगोट्स में फिर हमें 4n कंडीशन होती थी, मीन्स ह्यूमन्स में नॉर्मल 2n ही होता है, सपोज 46, लेकिन हमें डबल टेट्राइड कंडीशन मिल जाती थी, ठीक है ना। हमें 2 टाइम्स मोर क्रोमोसोम नंबर हो जाता था। इसकी वजह से क्या होता है, मियासिस होती है। अब जब यहाँ पर 1n निकलेगा, सपोज ये है मेल गिमेट, ठीक है ना, यहाँ पर फीमेल गिमेट ऐसे ही निकलेगा, वो भी 1n होगा। अब जब ये फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, तो हमें 2n फिर से नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट रेस्टोर्स द नॉर्मल सोमेटिक 2n क्रोमोसोम नंबर। प्रोडक्शन ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, एज वी हैव सीन, जो आपने देखा क्रॉसिंग ओवर होती थी, ठीक है ना, उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन हमें मिलती है। सेग्रीगेशन ऑफ द टू अलील्स ऑफ ईच जीन, ई जीन्स की क्या होती हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू पेयरिंग बिटवीन द टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड देयर सेपरेशन एट द फर्स्ट एनाफेज। जब आपने देखा था क्या होता था, ये सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ऑफ ईच जीन होती थी, ठीक है ना। सपोज ये क्रोमोसोम था, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम ए से अटैच हो जाती है, यहाँ पर इनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता था, शेयर हो जाता था, ठीक है ना। जब ये जेनेटिक मटेरियल शेयर हो जाता था पेयरिंग की वजह से, फिर ये क्रोमोसोम फिर से सेपरेट हो जाते थे। इसकी वजह से हमें क्या मिलते थे, एलील्स जो थे एक दूसरे, दैट्स फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम, ये एक दूसरे में चले जाते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से हमें वेरिएशंस के मौके मिलते हैं। अनदर is that is recombination between the linked genes due to the crossing over during पैचिटिन stage। ये मैंने आपको पहले ही पैचिटिन स्टेज में बताया क्या होगा, रिकम्बिनेशन बिटवीन लिंक्ड जीन्स होता है, ठीक है ना। Meiosis facilitates the segregation and independent assortment of chromosomes। अब क्रोमोसोम्स में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, जो आपने मेंडलिज्म में देखा होगा, व्हाट्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो नीट के लिए स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता ही होगा। वो होता है ड्यू टू दैट्स फैसिलिटेटेड ड्यू टू दिस मियोसिस। सेग्रीगेशन जो हम देखते हैं, क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल शेयर होने के बाद, वो हम देखते हैं इसी मियोसिस का बेनिफिट है, ठीक है ना। In sexually reproducing species, meiosis is essential for the continuity of generation. Yeah, absolutely it is. Because meiosis results in the formation of male and female gametes, and union of such gametes leads to the development of zygote, thereby new individual. As I told you earlier, क्या होता है, मियासिस एसेंशियल होती है जनरेशन कंटिन्यूटी करने के लिए। पहले ये 2n कंडीशन को बरकरार रखती है, इसके बाद क्या होता है, मेल गेमेट्स आते हैं 1n एंड फीमेल गेमेट 1n, ठीक है ना। ये कुछ गेमेट्स हमें ए से आते हैं, फिर ये फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से क्या होता है, हमें न्यू इंडिविजुअल मिल जाता है। ये बेनिफिट्स भी किसके हैं, मियोसिस के। इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना, सेग्रीगेट जो क्रोमोसोम होते हैं, इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल ने बताया था, ठीक है ना, वो बरकरार रहता है यहाँ पर किसकी वजह से, ड्यू टू मियोसिस। लेट्स लास्ट रिवीजन टू माइटोसिस एंड द मियोसिस। डिफरेंस देखते हैं इनमें क्या है। occur in the somatic cells, meiosis क्या है, occur in the reproductive cells, somatic cells, reproductive cells are germ cells, ठीक है ना। वन सेल प्रोड्यूस टू डॉट सेल, एक सेल से हमें यहाँ माइटोसिस में दो ही सेल मिलती थी, लेकिन इन केस ऑफ मियोसिस वी हैव द 4 डॉट सेल्स। It's an equitential divisional separating the sister chromatids, means 2n से हमें फिर 2n कंडीशन ही रहती थी, that's why it's known equitential division। यहाँ पर क्या है, ये रिडक्शनल डिवीजन है, फर्स्ट स्टेज, दैट्स मियोसिस फर्स्ट, ठीक है ना। क्रोमोसोम होमोलॉग सेपरेट हो जाते हैं, देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इक्विटेंशनल डिवीजन हो जाते हैं हमें मियोसिस फर्स्ट में। 2n से हमें 1n ही कंडीशन रहती है। ओनली वन डिवीजन पर साइकिल, ठीक है ना, एक ही डिवीजन होता है यहाँ पर पर साइकिल में, दैट्स मियोसिस। आपने माइटोसिस फर्स्ट सेकंड नहीं पढ़ा, ओनली माइटोसिस ही पढ़ा। उसमें क्या हो जाता है, सब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होते हैं, साइटोकाइनेसिस एटसेट्रा या काइरोकाइनेसिस, वो हो जाती है। यहाँ पर 2 डिविजन्स होते हैं, दैट्स मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शनल एंड सेकंड इज इक्विटेंशनल डिवीजन। क्रोमोसोम फेल टू साइनेप्सिस, नो चार्ज मेटा फॉर्मेशन। क्रोमोसोम यहाँ पर
फ्यूज नहीं होते हैं, दैट इज साइनेप्स नहीं होती हैं, ठीक है ना। साइनेप्स मैंने क्या बताया था, क्रोमोसोम फ्यूज होते हैं, वो यहाँ पर नहीं होते हैं। चियाज़ फॉर्मेशन जो आपने देखी मियासिस फर्स्ट में, वो भी यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर ये दोनों साइनेप्स एंड चियाज़ फॉर्मेशन होती है। जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम डज नॉट ऑकर, ठीक है ना। माइटोसिस में जेनेटिक वेरिएशन जो है वो नहीं होती हैं। यहाँ पर क्या होती है, जेनेटिक एक्सचेंज चियाज़ के थ्रू, जो चियाज़ ऐसे बनता था, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते थे यहाँ पर, इसकी वजह से जेनेटिक जो है मटेरियल एक्सचेंज हो जाता था, फिर हमें क्रोमोज वेरिएशन आ जाती थी। वो बेनिफिट्स थे मियासिस के, ना कि माइटोसिस के, ठीक है ना। ऑल्सो जो हमारी ग्रोथ होती है माइटोसिस में, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो माइटोसिस के थ्रू होती है। मियासिस हमारे गेमेट्स के थ्रू होती है।